Okay, good evening, friends. It is our day two of the 7 day boot camp of answer writing. On the day two, we have to focus on how to write a killer introduction. Yesterday, we have learned about the mindset of UPSC examiner. Now, we have already seen the mindset. We have already seen the directive words in the previous class. Now, it is our turn to write a killer introduction. We have understood the mindset. We have understood the demand. Now, we have to provide a supply. We have to do supply. And for supply, we have to start with the introduction. Introduction is the first impression. It creates a first impression. And it is generally said that first impression is the last impression. Although it is not always correct, you can always uh, give your content body part and make a body very strong and it will again fetch you mark. But at least for some hook, for some uh, attraction, introduction should be a killer one. Okay, good evening, Kavya. Good evening, Anjali. Good evening, Ajay. Am I audible? Can you see the screen? Yes, Anjali, One Kavya. second. Yes, sir. Shall we start? Yes, sir. Okay, Kavya and Ajay are in library, I guess. Okay, before starting, let us revisit something. Let us see a 10 marker question. 10 marker question, we have generally 2 pages and we have to write it in 150 words. Yesterday, we have seen how many words should be there in the introduction. We have seen that there should be 10% words should be there in the introduction. So 10% means around 15 words, I guess. 15 words means if you are writing 5 to 6 words in a single line, it means 3 line is enough for your introduction. So 2 to 3 lines, I guess 3 lines and 3 to 4 lines are enough for your introduction. And then you have to start with body. Body may whatever has been asked and something way ahead ho gaya. And at the last you have to conclude. Again, conclude should be the same. It can be 7 to 8 to 10% of 150. Means it can be written in 12, 15 word also. Means at least 2, 3 lines should be there in the conclusion. If you talk about 15 marker, it is not something that hard and fast rule. It can be varied. It can be managed as per the situation. It can be molded as per the situation. Okay, just remember that there is nothing hard and fast here that you have to write in 3 lines only. If you are having five, if it is going 5, 6 line, it is also enough. No need. You should follow one approach, and that is flexibility approach. Okay, whatever, because in many questions you don't know the facts and figure. In many questions you don't have that analysis. In many questions, in some question, you do not remember a single word. In some question, you will remember a lot of things. So you have to be flexible as per the demand, as per the situation, as per the time. If you are not having time, you can also miss the introduction in maybe in some questions if you are not having time. So it depends upon various aspects. So you should be flexible in your approach. But normally, generally, if you follow a standard approach, it should be completed within 3 to 4 lines, I guess.
In 15 liner, in 15 marker, you have to write 250 words. Uh, According to this, 25 words should be there, and 25 words means 4 to 5 lines. It means in the 10 marker, you have to write just one sentence. In the 15 marker, you have to write two sentences. Just a minute. One sentence here of 15 words, approx. It is not ideal thing, but we are learning how to approach how to approach normally question. Here you have to cover it in 25 words in two sentence. Two sentence sentence तो समझता होगा sentence means वाक्य मतलब एक वाक्य हो गया फिर उसके बाद में दूसरा वाक्य two sentences should be there. The same for यहाँ पे conclusion में भी same आ जाएगा. At least 3-4 lines का conclusion is enough here as well. ज्यादा ऐसा जरूरी नहीं है कंक्लूजन को आपको बहुत लंबा खींच के ले जाना है. इफ आर नॉट हैविंग टाइम, इफ आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो कंक्लूजन को एक लाइन में जस्ट आप ऐसे भी खत्म कर सकते हो, राइट. तो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन एट वॉट एवर स्टेज वॉट एवर टाइम यू आर हैविंग. आर यू गेटिंग काव्या, अंजलि? अंजलि, आर यू देयर? Okay, let us start. Your first three line decides your mark, of course, because मतलब not always, but it creates an impression. If you are writing something very phenomenal introduction, it will definitely create a very much impression, and you will definitely gain the mind of that examiner. You will be in the mind of that examiner, and he will provide you extra 1.5, zero point 0.5 to 1 mark extra for the same answer because you have understood the demand of the question and you are providing the same supply what he is asking for, what he is seeking for. Examiner decide in the first 10 seconds whether your answer is average or impressive, and that judgment is made before they reach your second paragraph. Are you getting? They made their judgment before they reach the second paragraph. So today we learn the art of creating that wow moment. What is that wow moment in just first three lines? What I have told that you have to just write 15 words, a single sentence, and in the first three lines you have to create that wow element. And your introduction should not be a decoration. It's not decoration, it is a communication. You are communicating with the examiner that this is my answer to your question. This is my response to what has been asked in the question. It tells the examiner, I have understood the question, I will structure my thought, and I will respect your time. So these are some bol bachan about the introduction, why it is important, why one should focus on it. Now we have some objective of today's class. Uh, we have to write the introduction that create hook, inform, and set direction. Right? ये तो obvious सी बात है. We will learn four different introduction style: contextual, philosophical, database, and code based. Again, what's that? Contextual, philosophical, database, and code based. This is the main crux of today's class. We have to learn to write a same question from different four perspective, according to situation, according to our uh, understanding, according to if we have data or not, according to what we are remembering at that point, and what what that perspective that is clicking our mind at that time. So you should be flexible here again as well. Whatever you are remembering, whatever you are recalling at that time, you should go with that approach. There is nothing right and wrong about the style, introduction style. We will try to look all those things in the detail in the further.
Apply the three-line formula, that is concept, context, and connection. Concept, context, and connection. We have already talked about concept. Concept means that um, concept means you can say the base, the main element, that is concept. And context means how you are connecting, sorry, how, why the question has been asked, what is the reason, uh, what is that element that has brought the examiner to ask this concept. The question, there must be something, and that must be in the current affair. There must be something that is in the current affair, and that has provided a context to ask that particular question. And if you are able to connect with that current affairs perspective, so it will fetch you extra mark. And after that, if you are understanding the question ki demand and you are providing that context as well, then the next step is connection. Connection is something that we have understood, that we have seen in the last class of Shruti Sharma ma'am's copy. What we have seen, that how she has connected different parts via using the connecting words. She has used that connecting words like yet, however, and it has made a connection. It has made a flow in her answer, and that is a main thing that 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 lead to create a positive impression in the minds of examiner. So after concept, you have to focus on context, and beyond that, if you are well versed with the concept and context, you have to follow the approach of connection between various subparts. Because whenever you are having that uh, clarity in your mind, then only you can bring that connection wala element. Otherwise, it would be difficult. If you are not having clarity in your mind itself, you cannot bring that connection. So if you are doing that connection wala part, it means examiner understood that you are having that clarity in your mind. So he will definitely reward you more, at least zero point 0.5 marks to plus 1 marks will gain. And this plus 1 in 20 question will lead you 20 extra marks. And the same, if you look at the Shruti Sharma copies, in every paper, she has scored at least 15 to 20 marks extra. And this had made her scored more than 900. I think, yes, 900 in the mains uh, answers, mains paper only. She had scored more than 900. It is exceptional. Let us move ahead. Avoid weak, generic, and repetitive opening. Don't have to, all those nonsense should be avoided. Weak, generic, repetitive. Practice answer writing under pressure, 40-second rule. Yesterday, we have talked that you should not, generally, we spend 1.5 minutes on writing introduction, but 1.5 minute is way beyond. It will create a tension for the last question, because we will run out of time. So we have to follow at least 40 seconds. If not 40 seconds, at least 1 minute. You have to finish your introduction in the first minute only. For introduction method, the introduction is your first handshake with the examiner, short, firm, and confident. A good introduction does three things. It defines the theme, it creates context, and it gives direction. Define the theme means whatever that has been asked, the keyword has been asked in the question, ये define कर देता है. Creates context. Context means why this topic matters now. अभी क्या role है? And it give direction. How I will provide you the answer, how I will approach this particular answer. It gives that direction, what the answer will explore. It is not repetition of the question, it is interpretation of the question. You also have to remember all those things. It is not repetition of the question. You'll never, you should never copy the same wording that has been asked in the question. You have to at least uh, you have to write something that is synonyms. If you are writing, you don't have to repeat the same words. Word to word, agar dicto you will copy, it will create something negative impression of yours in the minds of you examiner. So
There must be some interpretational aspect in our that answers in the introductions. Let us look at the golden formula 3. We have already seen that context, context, and connection. Okay, let us move ahead. There are four style of introduction. Now, the main thing is there, four style of introduction. How we have to write all those things? Let us learn here. This is the crux of today's class. Starting with the contextual introduction. Context. What do you mean by context? Anjali, can you elaborate? Anjali, Yes, sir. Uh, I what is mean, some perspective kind of a thing. context? Context. Already we have seen earlier that context, what is the meaning of context? Why it has been asked Uh, context. yes, sir. That we have to define in such thing only. Okay, okay. Mm, o- Let us see, Anjali. Contextual Okay. introduction. Contextual means it is linking with the current affair. Why there has been so much talk about that question? Why it is Okay. how it is related to a particular current affair thing. So that context that has made the examiner to ask and to make a question on that particular topic. So it should be there must be some current affair thing. There must be some context, and that we have to write in our introduction. And that is one of the best way, and that is one of the easy way. Why easy way? Because we are well versed with the current affairs in many aspects. So if you are linking that question with the current affairs perspective, that is very good approach, and that is very simple approach as well. Let's say you are asking about there has been question on GS2, and that is related to governor. The role of governor has been dicey in today's era. Don't you think so? इस तरीके का कोई आंसर आ गया. Analyze. ठीक है. If you start the role of governor, there are various approach again for starting the answer. But if you start that, there has been uh, there has been in news about the partial role of Kerala governor in passing various bills and reserving it for the president assent. And it has created a tension tussle between center and state. And it has brought to the news the tussle between center and state. Don't you think it is a good example, good introduction, good way to introduction? Anjali, It's, yes, sir. It's good. Good way. it is what we have created here that we have provided a current affair perspective, and that is known as Go. contextual introduction. Okay. 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 Understood. And it is very easy. If you are well versed with the news, if you are well versed with the current affair, it is very easy to write the contextual introduction. When the topic is Mm-hmm. linked to current affairs, social issues, and real event. Okay, it is valid in subjects like GS2. GS2 में, of course, polity is very likely to have such contextual introduction. Governance is very also easy, and IR you can easily write in IR and social justice also. In GS1, you will find such answers in society and some geography wala part. Art and culture history, there must be some additional efforts required because if you are remembering art and culture, you have to remember UNESCO or all those things. It would be difficult. Let it ignore all those things. In society, you can connect easily. In geography, you can connect easily. For example, geography में आप easily बता सकते हो that this is in news, so it has been there has been some issues. For example, climate change and agriculture ऐसा कुछ आ गया. Urbanization वाला aspect आ गया. You can always write about Kolkata. You can always write about बेंगलुरु या फिर दिल्ली वाला केस. So it is easy.
The same manner, polity, governance, IR, social justice. GS2 paper is more or less, it is a dynamic in nature. If you look at the today's this year papers of 2025, you will get to know all those things. In GS3 also there have been dimensions from economy, and इकोनॉमी हो गया, इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, एंड देन साइंस एंड टेक हो गया, एनवायरमेंट ऑल्सो. बट ये तीन वाले जो है ऊपर वाले तीन, यू कैन इजीली सेट अ कॉन्टेक्स्ट हियर. इकोनॉमी, इंटरनल सिक्योरिटी एंड साइंस एंड टेक. Very good way to start a answer. How? Begin with a short context, fact or situation, then link to the core topic. Let us see our uh, what we have done in the governance wala introduction. We have what we did is we started with the Kerala's governor role and how he is preserving the uh, bills for the assent of president, and we have connected with center state tussle, right? We have started with a short context, and we have connected, we have linked it with a core topic. And what is that core topic? That is central and state के बीच में tussle due to the role of governor. So this is, in this way we can write a contextual introduction. For example, again let us see another example. Discuss the challenges of urbanization in India. Uh, Now we have a model answer, but the model answer is in three sentence, and it is not very much fruitful that we cannot write that lengthy introduction in our real examination. At least let us see what has been written here. With nearly 36% of the Indian now living in urban areas, India is witnessing one of the fastest urban transition in the world. The rapid growth, though a sign of development, has brought challenges in infrastructure, in governance, inclusivity. Understanding these values is, so ये वाला जो approach है, this is traditional approach. What generally a 9th, 10th, 11th, 12th student, or you can say a college going student used to write in their paper. ये हो गया फर्स्ट, पहले में एक्सप्लेन कर रहे हो, सेकंड में एक्सप्लेन कर रहे हो, थर्ड में एक्सप्लेन कर रहे हो. दिस इज नॉट फ्रूटफुल फॉर यूपीएससी टाइप ऑफ थिंग. यूपीएससी इज नॉट अ 9 10th 11 12th वाला एग्जाम, इट इज बियॉन्ड दैट. तो आपका जो आंसर होना चाहिए, इट शुड ऑल्सो बी बियॉन्ड दैट. इट इज ऑल्सो नॉट रिलेटेड टू कॉलेज. कॉलेज में ऐसा सब चलता है, बट नॉट इन यूपीएससी. यूपीएससी में क्या होना चाहिए? इट शुड बी डायरेक्ट, सीधे, कंसाइज होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए, एंड इट शुड बी डायरेक्ट. लेट अस सी. With 36, the same content, how we can write in the UPSC. With 36% of the Indian living in cities, rapid urban growth signals progress, but also sustain infrastructure, governance, inclusivity, demanding sustainable solution. Everything has been crystal clear in the single sentence. With 36% of Indian living in cities, you have provided a fact. Very good. Rapid urban growth signals progress, positive, but yet it has a strong infrastructure, governance, inclusivity, some tensions, challenges, demanding sustainable solution. And what is demanding? What is demanding here? It is demanding a solution, that is sustainable solution. Very, very easy way to start, and very apt way to start this type of answers. Sorry, this type of introduction. Are you getting? Anjali, Ajay, Kavya? Hello, hello, hello. Are you there? Yes, sir. Okay. Are you getting what I want to convey? Yes, sir. I'm getting. Okay. What about Ajay? Just give a thumbs up. Okay, right. Now we have another way to start. Before that, start with a for a tip how to write a contextual introduction.
Start with the current statistic, report, event, and make it relevant and credible. Right? What anything that we are writing, you can start with anything, but anything and everything it has to be related with the topic. You have to relate it with the topic or keyword that has been given in the question. If you are relating it with the topic, you are writing a very good introduction. Start with the current statistic, report, or any event and make it relevant and credible. Now, the next approach to write or start an introduction, that is philosophical introduction. Philosophical introduction, it is difficult to write, but if you write it, it supersede every other introduction. ठीक है, अगर आपका कॉन्टेक्स्ट वाला है यहाँ पे, तो philosophical will always वो always not always, but it will according how you are writing that philosophical one, it will uh, go in more profound way. It will connect with the examiner in a more profound way. So let us see some basics about philosophical thing. When to use in question related to ethics, social issues, governance, and abstract ideas. Okay, we cannot write everywhere, but in questions related to ethics, social justice, social issues, governance, and abstract ideas. Abstract ideas, what are the abstract ideas? For example, separation of power, या फिर that is related to limitations of the government, role of constitution, ठीक है, life and liberty, then something related to duties या फिर rights. इस तरीके के क्वेश्चंस they are abstract ideas, and ऐसे abstract idea में you can use this philosophical dimension and it will definitely give you extra mark. I'll show you some philosophical dimension and some unique dimension that has been uh, covered in what we can say agriculture question as well. Agriculture question या फिर और भी different dimension that has been covered, that is generally not covered, that is not traditionally written by a topper, but it has been written and it has created a very much lasting impression. Some introduction has been written by Shruti Sharma. I'll share with you. Moving ahead, start with a reflective idea or philosophical statement that resonate with the theme. For example, this year there has been question on infrastructure in the UPSC CSE mains in I think GS paper 3 related to in economy wale part mein. Then in that question, I have started with the quote of Minsky. Hyman Minsky. He is a Nobel laureate in economics. So I have started with the quote that I have got this quote from the economic survey. Okay, economic survey of 4 to 5 years ago. Investment calls the tune and profit profits dance accordingly. ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट की जगह आई हैव चेंज समथिंग, जो क्वेश्चन में पूछा गया था उस हिसाब से थोड़ा सा वेरिएशन कर लिया. इन्वेस्टमेंट कॉल्स द ट्यून्स, मतलब इन्वेस्टमेंट जो है वो बांसुरी बजाता है और उसके अकॉर्डिंग डांस प्रॉफिट जो है वो डांस करता है. या फिर बेनिफिट, या फिर उसके अलावा आप कह सकते हो ह्यूमन रिसोर्स, जो भी आप उसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेरी कर सकते हो. इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट इज मेकिंग द सॉन्ग, एंड वो सॉन्ग के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, आपका प्रॉफिट डांस कर रहा है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, ये शायद मैंने सोशल इन्वेस्टमेंट के अंदर भी करा था, कि अगर आप सोशल इन्वेस्टमेंट के अंदर फोकस कर रहे हो, तो आपका क्या है, आपकी जो ग्रोथ है, आपका जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट एंड सबका साथ सबका विकास वाला जो कॉन्सेप्ट है, इट विल डांस अकॉर्डिंगली. अगर आप सोशल इन्वेस्टमेंट सोशल इंफ्रा पे फोकस कर रहे हो, तो इस तरीके से फायदा होगा.
It is not a traditional way, but it is very much a good way to write and do this type of introduction. इसके अलावा देयर आर अनदर वे, आपको बता देता हूँ जो शायद आई ऑल्सो ट्राइड इन दिस ईयर एज वेल। GS1 के अंदर आती है सोसाइटी, फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है ना। GS1 में सोसाइटी नहीं, GS1 में वाटर वाला एस्पेक्ट, रिलेटेड टू वाटर, है ना। वाटर, दैट देयर हैज बीन कोट रिलेटेड टू वाटर, एंड व्हाट इज दैट? Yes, I have written this here as well. Many have lived without love, but none without water. That is, I'm not remembering the person. Okay, many have lived without love, but none without water. Although that is कोड बेस्ड, बट यहाँ पे आपको फिलोसॉफिकल डायमेंशन भी देखने को मिलेगा। जनरली ये तो कोड बेस्ड हो गया, लेकिन फिलोसॉफिकल डायमेंशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हमारी स्टार्टिंग हो सकती है। ठीक है, अगर आपको किसी का नाम याद है तो वो कोड बेस्ड हो जाएगा, नहीं तो आप विदाउट मेंशनिंग दैट नेम आप उसको फिलोसॉफिकल डायमेंशन में भी ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से अप्रोच आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, आप किस तरीके से नेविगेट करा रहे हो अपने कोर्स को या तो फिर फिलोसॉफिकल डायमेंशन को, उस हिसाब से आपका इंट्रोडक्शन उस तरीके से आपका इंट्रोडक्शन भी बहुत अच्छा बन सकता है। लेट अस सी, यहाँ पे देख लेते हैं गवर्नेंस वाले एस्पेक्ट में आप देखोगे समथिंग फिलोसॉफिकल डायमेंशन किस तरीके से अचीव किया है। अंजलि, आर यू गेटिंग? Yes, sir, I am getting. अजय, एनी डाउट अंजलि? No, sir. No. Let us see the example that has been written here. What do you understand by the good governance? Discusses it essential features. That has been the same question has been asked by UPSC in, I guess, 2021 or 2022. Means this question has been asked in 21. Model introduction. Generally, what a normal person write. Governance is not about power; it is about purpose. Good governance ensures authority, serves citizen with transparency, accountability, equity. Very good. It is a bridge between democracy, promise, and people progress. Almost all the things are very good here, but इंट्रोडक्शन इतना बड़ा नहीं लेके जा सकते। वी हैव टू मेक इट क्रिस्प। ठीक है, देयर मस्ट बी, अभी मैंने क्या बोला है, ये जो क्वेश्चन दिस टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन आर वेरी वेरी वेल वर्स विद 9th 10th 11th 12th, या फिर आप यूनिवर्सिटी में चले जाओ, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे दिस टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन। यूपीएससी के लिए डिमांड नहीं है, यूपीएससी की डिमांड आती है दिस टाइप ऑफ। गवर्नेंस गोज बियॉन्ड पावर, इट एम्बॉडीज पर्पस, ensuring transparency, accountability, and equity to translate democracy's ideal into real progress. Are you getting? Governance goes beyond power. ये पावर के बियॉन्ड जाता है। इट एम्बॉडीज पर्पस, इट एंश्योर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इक्विटी टू ट्रांसलेट डेमोक्रेसीज आइडियल इनटू अ रियल प्रोग्रेस। देख रहे हो आप कितना अच्छे तरीके से 3 लाइन को क्रिस्प में कर दिया गया है। इसके साथ में आप इसको यू कैन ऑल्सो मेक इट मोर शॉर्टर एज पर द डिमांड। ठीक है, अगर आपको बस इक्विटी तक के लाना है तो इक्विटी तक लाके भी यू कैन ऐड। अदरवाइज आप अगर कोई क्वेश्चन में जो वर्ड दिया है उसके साथ में कनेक्ट करना चाहते हैं और थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं तो ये अपन कर सकते हैं। इट इज व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल अप्रोच होनी चाहिए। अगर छोटा लग रहा है आपको तो आप बढ़ा लो, या तो फिर आप उसके अंदर एडिशनल एलिमेंट ऐड करके उसको और भी एनहांस कर सकते हो। राइट, तो ये आपने एक देख लिया फिलोसॉफिकल इंट्रोडक्शन। कोई बता सकता है अंजलि, कैन यू से समथिंग, कैन यू रिमेम्बर समथिंग फिलोसॉफिकल इंट्रोडक्शन?
Uh, no, sir. Sir, you are getting this kind of introduction from topper copies or any particular book? Which type of introduction? Uh, no, there is no book as such, but actually it has been compiled over years. कहीं किसी Okay. टॉपर्स की कॉपी में से दिख गया, कहीं पे आई फॉर एग्जांपल दिस इन्वेस्टमेंट वाला दैट हैज बीन फाउंड फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे. There has been Mm. that which one, something from Shruti Sharma's copy, something from Anudip's copy, something from any other, something from Indian Express. Mm-hmm. Okay, sir. Understood. Uh, Let us try some philosophical dimension. Like Mm, uh, this government work is like God's work. Something quote is there. Some quote is there in okay, 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 my okay. language. Government, okay, government work is God work. Okay, थोड़ा सा बहुत ही हैवी हो गया तो government work is God work. Uh, But that for is in. example, yes. No, sir. I just remembered that it is in our local language, Kannada language. I just translated it into English, but it won't Okay, okay. seems like good introduction. I don't know. फॉर एग्जाम्पल फिलोसॉफिकल डायमेंशन में आप लिख सकते हो दैट जो द सेम दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास, इंडिया नेपाल रिलेशन. इंडिया नेपाल रिलेशन में हमने व्हाट वी हैव सीन दैट रोटी बेटी का रिश्ता, Yeah. मतलब इट इज ब्रिंगिंग सम फिलोसॉफिकल टिल्ट टू द आंसर. रोटी बेटी का रिश्ता, राइट. और इसको फिर आप कनेक्ट कर रहे हो शेयर्ड हिस्ट्री से एंड बाउंड्री से कनेक्ट कर रहे हो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? किस तरीके से फिलोसॉफिकल Uh, टिल्ट, जब आप फिलोसॉफिकल टिल्ट लेके आ गए आंसर में तो इट हैज बिकम समथिंग प्रोफाउंड. mm-hmm. ओके, लेट अस सी द एक एक क्वेश्चन देखते हैं ना. लेट अस सी अनदर वन फ्रॉम सोशल इश्यूज. लेट्स से सोशल इश्यूज हो गया. हम्म, या फिर लेट्स से इकोनॉमी. हाँ चलो, फॉर एग्जांपल जैसे ये है, रियल डेवलपमेंट इज नॉट अबाउट ट्रांस इकोनॉमिक्स. रियल डेवलपमेंट इज नॉट अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग इकोनॉमिक्स. It is about transforming lives. Sorry, lives. Yes, yes, Transforming understood. lives. Mm. तो समझ में आ रहा है किस तरीके से वी हैव कनेक्टेड philosophical tilt in the introduction. Yeah, yeah, yeah. Understood. एंड द सेम मैनर जैसे सोशल इश्यूज वाला हो गया, सोशल इश्यूज हो गया, या फिर गवर्नेंस वाला हो गया. गवर्नेंस में आप देखोगे बहुत सारे एक एलिमेंट आता है दैट इज डेवलपमेंटल एजेंट. कोई बता सकता है व्हाट आर दैट डेवलपमेंटल एजेंट्स जो गवर्नेंस वाले हमारे पार्ट में आता है? डू नो डेवलपमेंटल एजेंट्स जो डेवलपमेंट में ऐड करते हैं, अब कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं? एनजीओज, सेल्फ हेल्प Yes, ग्रुप, yes, yes. सिविल सर्विस, Yes. हाँ ये सब सिविल सोसाइटी ग्रुप और बाकी जितने भी वो Mm. सब है वो दे आर ऑल पार्ट ऑफ डेवलपमेंटल एजेंट्स. तो डेवलपमेंटल एजेंट्स के अंदर भी आप कर सकते हो कि किस तरीके से डेवलपमेंटल एजेंट्स दे आर. Can we add pressure? सॉरी. Pressure groups will come हाँ under नहीं, this. अरे ऑफ कोर्स मतलब very many others will also be included in this. I'm saying how if someone is asking the question related to developmental agents, and we can add that developmental agents are not just playing the role of transforming economics. They are playing the role of transforming lives. Yes, yes, absolutely. It is very
गुड इंट्रोडक्शन, मतलब पहले आई नेवर ट्राइड बिफोर, बट इट इज it is working here, right? Developmental agents are not here just to transform the economics. They are here to transform. They are working on the ground to transform the lives. Okay, right, right, right. Very Yeah, okay. it's look So this like is more. Okay. I what mean, it it is. looks like more better than normal way if we add these kind of introductions. Yes, yes. I already said that कि अगर आप नॉर्मल लिखोगे और फिलोसॉफिकल लिखोगे, फिलोसॉफिकल विल सुपरसीड द नॉर्मल वन, थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा. Yes, sir. एंड ठीक है, अभी और देखेंगे, राइट? वी विल सी. Here we have a tip. We have to use powerful ideas and contrast. Power versus purpose, democracy versus delivery. Avoid too abstract quote unless clear. ठीक है, कभी कभी जो है जैसे टू एब्स्ट्रैक्ट, बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट कोड भी रहते हैं. दैट इज व्हाट वी कैन से, उसका मीनिंग कैन बी वेरिड. तो ऐसे जो एब्स्ट्रैक्ट कोट है, यहाँ पे फिलोसॉफिकल में भी कोट यूज हो रहे हैं, जैसे हमने देखा है कोट वाले में भी कोट होते हैं और फिलोसॉफिकल में भी कोट आते हैं. लेकिन कोट जो रहते हैं, इफ इट इज मोर अबाउट Okay. फिलोसॉफिकल टिल्ट, तो आपको वो यहाँ पे भी Right. यूज होते हुए मिलेगी. बट इट शुड नॉट बी एब्स्ट्रैक्ट, इतने ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट हो जाए कि आपको पता ही नहीं चल रहा मीनिंग. थोड़े से Mm. इंटरलिंकिंग होनी चाहिए. अदरवाइज इट वुड बी, Okay. मतलब ऐसा लगेगा कि आपने जस्ट यू हैव गॉट दैट कोड फ्रॉम समवेयर एंड यू आर जस्ट कॉपी पेस्टिंग हियर. नाउ द Okay. नेक्स्ट इज database introduction. When to use, So how to use. that Let us. uh, Sorry. so one thing, I mean this quote based introduction. One thing I'll tell you, like if any question asking about women related development, like some women related scheme, we can start with one quote like, if we educate a man, if man will educate, but if we educate a woman, the whole generation will educate. Such kind of quotes we can use now. Of course, of course, of course. If you educate a man, you are educating just an individual. But if you are educating a Yes. women, you are Ah, educating a next generation. yes. Yes, तो बिल्कुल, yes, this, देखो, आपने ही अभी बता दिया हाउ वेल इट इज गोइंग, हाउ इम्पैक्टफुल इट इज लुकिंग इन द आंसर्स. कोड बेस्ड बिल्कुल बहुत अच्छा तरीका है भाई. मार्क्स मिलते हैं Yeah. इससे, इंप्रेशन बहुत ही पॉजिटिव जाता है. मैं आपको एक इंट्रोडक्शन बताऊंगा फ्रॉम श्रुति शर्मा, यू विल बी अमेज. इतना, इट इज लाइक, मतलब जो अभी तक के जितने आपने देखे होंगे उसके भी ऊपर का, बियॉन्ड समथिंग. ओके, व्हेन टू Okay, यूज. okay. Okay. लेट अस स्टार्ट, सॉरी, लेट अस लुक एट द डाटाबेस इंट्रोडक्शन. ये डाटाबेस भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसके लिए आपको यू मस्ट हैव टू रिमेंबर द डाटा. ठीक है, अब भाई डाटा हमारे पास में हर चीज के बारे में नहीं होता है. डाटा हमें कहाँ पे रहता है, पॉलिटी के अंदर आपके पास डाटा आ सकता है. ठीक है, इसके बाद में पॉलिटी में जैसे वो आता है ना, उनकी रिपोर्ट आती है अब अबाउट जुडिशियल में कितनी पेंडेंसी है सुप्रीम कोर्ट में, या फिर पार्लियामेंट में कितने सारे बिल रिजर्व करके रखे बाय फॉर डीआरएससीज, क्या क्या है, कितने समय में पास हो गई, ये सब डाटा पॉलिटी में आपको देखने को मिल सकता है. इन एन ज्योग्राफी में आपके पास डाटा आ जाता है, एनवायरमेंट में डाटा आ जाता है, एंड इकोनॉमी में तो डाटा रहता ही है. इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर में डाटा रहता है, सबसे ज्यादा जो डाटा रहता है दैट इज इन इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में डाटा ही डाटा भरा हुआ है. एवरी क्वेश्चन ऑफ एग्रीकल्चर कैन बी स्टार्टेड विद द डाटा, एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमी कैन आल्सो, बिकॉज इकोनॉमी इज ऑल अबाउट डाटा. तो उसके अंदर डाटाबेस इंट्रोडक्शन आपको लिखने में बहुत ही इजी रहता है. ठीक है, व्हेन द क्वेश्चन कैन बी स्ट्रेंथन बाय द फैक्चुअल ग्राउंडिंग, इकोनॉमिक, फॉर एग्जांपल जैसे टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स, सोशल एंड एनवायरमेंटल. इकोनॉमिक्स अभी आपको बता दिया, सोशल टॉपिक के अंदर भी है. सोशल टॉपिक में किसका आ गया, सुसाइड. ठीक है, आप लिख सकते हो कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन हैज बीन देयर दैट सुसाइड इज गेनिंग मच मोर न्यूज nowadays, ऐसा कुछ. फॉर एग्जांपल, young women are getting, one young women are
having more suicide in today's generation, what is the reason, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो फिर आपके पास अगर डाटा आ गया कि यंग वुमेन का डाटा हो गया या फिर नॉर्मल आपके पास सुसाइड का डाटा हो गया, that will strengthen very much to your that will give strengthening to your answer very much, because यहाँ पे क्या है, अपने फैक्चुअल ग्राउंडिंग लेके आ गए सोसाइटी के क्वेश्चन में। और सोसाइटी क्या है, सोसाइटी इट इज ऑल अबाउट रियल लाइफ, जो आप आजू बाजू जी रहे हो, दैट वी आर लिविंग, वी आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी के अंदर आपको डाटा फैक्ट ये सब मिलेंगे ही। तो अगर आप वो यहाँ पे यूज कर लो तो डेट वुड बी वेरी गुड। एनवायरमेंट के टॉपिक, एनवायरमेंट के बहुत सारे जो टॉपिक रहते हैं उसके अंदर आपको डाटा भर भर के मिलेगा। ठीक है, हम देखेंगे एनवायरमेंट के तो बहुत ही मजे आता है, एनवायरमेंट के टॉपिक को आपको डील करने में बहुत ही अच्छा लगेगा। ओके, लेट अस मूव अहेड। हाउ वी हैव टू बिगिन विद अ डाटा पॉइंट या फिर रिपोर्ट या फिर इंडेक्स। एनवायरमेंट का कोई भी टॉपिक है वो उसके लिए आपको रिपोर्ट मिली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई बता सकता है एनवायरमेंट के लिए कोई रिपोर्ट? Not आईपीसीसी, remember. I mean, आईपीसीसी की रिपोर्ट है, आईपीसीसी हैव अ AR6 असेसमेंट रिपोर्ट 6। दुनिया में जो भी टॉपिक है वो आईसीसी के AR6 में आ जाएगा, रिलेटेड टू एनवायरमेंट, है ना। आईपीसीसी, अगर आपको आईपीसीसी और भी स्पेशल रिपोर्ट लेना है तो आईपीसीसी स्पेशल रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज, ओशन एंड क्लाइमेट चेंज, SROCC। अगर आपको आईपीसीसी की और भी स्पेशल लेना है तो आईपीसीसी स्पेशल रिपोर्ट ऑन 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड राइज हो जाएगा, तो क्या होगा, स्पेशल रिपोर्ट ऑन SRO ऑन डेजर्ट एंड डिग्रेडेशन, इस पे भी उसकी कोई रिपोर्ट थी। तो इस तरीके की ऐसे आईपीसीसी, ये 3 रिपोर्ट स्पेशल रिपोर्ट है आईपीसीसी की। और ये असेसमेंट रिपोर्ट 6th वाली अभी जो लेटेस्ट में आई, ये दीज आर द स्पेशल रिपोर्ट जो उन्होंने सिर्फ ओशन पे ये लैंड डिग्रेडेशन पे बनाई है। तो इस तरीके की जो रिपोर्ट है, इट विल इट कैन बी एडेड एनीवेयर। ये जोग्रो एनवायरमेंट के अंदर आप 3-4 ऐसे रिपोर्ट कर लो, उसको घुमा फिरा के यू कैन यूज। इकोनॉमिक्स में क्या हो जाता है, घुमा फिरा के इकोनॉमिक्स में आ जाता है इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे कैन बी यूटिलाइज एनीवेयर इन द इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। जैसा एनवायरमेंट में अभी आपको रामबाण दे चुका हूँ मैं आईपीसीसी, वैसा ही इकोनॉमिक में इकोनॉमिक सर्वे इज रामबाण। इट कैन बी यूटिलाइज एट मेनी प्लेसेस। बिगिन विद द डाटा पॉइंट, रिपोर्ट और इंडेक्स। इट शोज अवेयरनेस एंड क्रेडिबिलिटी। ठीक है, आप अपने मन से नहीं लिख रहे हो, यू आर प्रोवाइडिंग अ पर्टिकुलर सोर्स, और वो सोर्स क्या क्रिएट करता है, इट क्रिएट्स अ क्रेडिबिलिटी टुवर्ड्स टू योर आंसर। और इसके साथ में क्रेडिबिलिटी तो देता ही है, और आपको पता भी चलता है सामने वाले को दैट यू आर अवेयर अबाउट दैट थिंग, यू हैव रेड दैट इकोनॉमिक्स। अगर मैं इकोनॉमिक सर्वे देखूंगा तो सामने वाले को, हाँ भाई यार इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होगा इसने। इफ आई एम राइटिंग आईपीसीसी, तो आपके दिमाग में आ जाएगा आईपीसीसी, एसआरओसीसी, जैसे अभी मैंने बताया आपको। तो आप सोच रहे होगे कि कहीं ना कहीं सर ने एसआरओसीसी के ऊपर यस रेड दैट समवेयर। तो वैसा ही एग्जामिनर आल्सो थिंक इन द सेम मैनर। लेट अस सी वन क्वेश्चन फ्रॉम द डाटाबेस, ऑलरेडी हमने 2-3 तो देख ही लिया अभी। Evaluate the impact of climate change on Indian agriculture. Very simple question and very repetitive question. Impact of climate change on Indian agriculture. According, now the traditional way, ये आप lengthy लिखते हो, lengthy नहीं लिखना है, we have to write short. Let us see the lengthy way. According to EcoSurvey 22, India loses nearly 2% of its GDP annually to climate change related losses. Agriculture, the backbone of the rural economy, is the most effective by changing rainfall and temperature pattern. Assessing this impact highlight the urgent need for climate resilient farming. Okay. Now this is a traditional method. ये भी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। There is nothing wrong in this approach. बहुत सारे आप देखोगे स्टूडेंट also aspirants also write in this manner. But uh, we should learn something good, a better way. According to Economic Survey 2022, climate change costs India's 2% of GDP yearly, severely impacting agriculture and demanding urgent resilience measure. Wow. समझ में आ रहा कितना बेहतरीन आंसर हो गया ये। इज इट गुड अंजलि? yes, sir. मतलब मजा नहीं आ रहा Uh, है क्या? डोंट यू फाइंड इट अ गुड इंट्रोडक्शन? yes, sir.
quoting the economic survey, no? ओके, ठीक है। अभी कोटिंग द इकोनॉमिक सर्वे यहाँ पे हो गया है। इसके अलावा लेट अस सी द सेम क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड टू यू। क्या इस पे हो सकता था? इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द डाटा पर्सपेक्टिव, डाटा पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अलावा कोई डाटा जो आपके दिमाग में आ रहा हो, नॉट एग्जैक्ट डाटा, लेकिन कहीं ना कहीं अपन वो डाटा यूज कर सकते हैं। लेट अस ट्राई टू रिकॉल समथिंग, बताइए। Actually, I mean, this economic survey is standard data, no? If we quote any other thing, it will look not a standard नहीं, one. फिर भी Okay. जस्ट ट्राई समथिंग दैट व्हाट वी कैन राइट हियर। Um, sir, not getting anything. ओके चलो ठीक है, लेट अस सी, है ना। अभी जैसे क्लाइमेट चेंज ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जीडीपी की बात हुई है, जीडीपी फुल, कि क्लाइमेट चेंज कॉस्ट इंडिया को 2% जीडीपी। अभी क्या बीच में क्या हुई थी? हीट वेव्स और इस तरीके की वेव्स आई थी, हीट वेव्स एंड कोल्ड वेव्स, मतलब आती रहती है वो तो उसका यूज हम कर सकते हैं कि एज पर आईएमडी, आईएमडी लिख दिया हमने, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आईएमडी पुणे, पुणे की जरूरत नहीं है, एज पर आईएमडी इंडियन एग्रीकल्चर या फिर इंडियन राइस प्रोडक्टिविटी, राइस प्रोडक्टिविटी इन इंडिया या फिर राइस प्रोडक्शन इन इंडिया हैज बीन डिक्लाइन बाय 13% in the financial year 24-25 because of heat wave and cold wave, because of let's say cold wave। नहीं, कोल्ड वेव तो नहीं आती है जब वो लगाते हैं, हीट वेव आती है बिकॉज ऑफ हीट वेव। आया समझ में? हाँ, तो फिर यहाँ पे इसको फिर कनेक्ट कर सकते हैं। सो इट इज नेसेसरी टू लुक एट द, so it is necessary to build resilience against the climate change, so we have to focus on climate smart agriculture। This introduction is more relevant to climate impacts than this राइट GDP राइट, introduction. Yeah, यस good यस sir. यस। नहीं तो ये बिल्कुल इस तरीके से और भी अच्छे अच्छे इंट्रोडक्शन निकल सकते हैं। तो व्हाट आई सेड दैट, कि जब भी आप आंसर लिख रहे हो तो आंसर आपने लिखे, बट उसके बाद में यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट एंड एनालाइज। अभी क्या कर रहे हैं अपन, अपन ने अभी जैसे एनालिसिस किया यही क्वेश्चन, तो वी हैव गॉट समथिंग बेटर इंट्रोडक्शन, जो यहाँ पे लिखा है, जो मैंने लेके आया हूँ उससे भी बेटर आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन मिल गया। तो वैसा ही अगर हम वापस से सोचेंगे घर जाके, तो विल फाइंड अनदर बेस्ट, अनदर ग्रेट एग्जाम्पल। और यही ग्रेट एग्जाम्पल, ग्रेट इंट्रोडक्शन अगर हम याद करके रख लेंगे, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन विल आस्क, डेफिनेटली देयर वाज बी क्वेश्चन इन GS1 या फिर GS3 फ्रॉम द सेम क्लाइमेट चेंज एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो वहां पे हम इट कैन बी यूटिलाइज। As per IMD, rice production has been declined by 13% in the financial year 24-25 because of heat waves. So it provides a necessary, it provides uh, that we should focus on climate smart agriculture। Very good। अगर आपके पास दो डाटा है, तो एक डाटा को कहाँ पे कर लो, एक डाटा को कर लो इंट्रोडक्शन में, दूसरे डाटा को कर लो कंक्लूजन में। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड अप्रोच। ठीक है, बस आपको क्या करना है, यू हैव टू चेंज योर वर्ड्स, किस तरीके से आप वर्ड चेंज कर रहे हो इंट्रोडक्शन में और किस तरीके से वर्ड चेंज कर रहे हो कंक्लूजन में। कंक्लूजन, कंक्लूजन वाला जो वर्ड से इट प्रोवाइड्स अ कंक्लूडिंग रिमार्क्स, और ये वाला जो इंट्रोडक्शन वाला है, ये आपको एक इट इट क्रिएट्स अ हुक। नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे टिप, यूज सिंपल राउंडेड डाटा, अवॉइड क्लटरिंग विद मल्टीपल नंबर। ठीक है, ये भी एक और बात है, आपको मल्टीपल नहीं देना है कि यहाँ पे मैंने क्या दिया, सिर्फ यहाँ पे राइस का दिया,
अब ऐसा मत देना कि राइस की इतनी हो गई, वीट की इतनी हो गई, मेज की प्रोडक्टिविटी हैज बीन लॉस्ट या फिर प्रोडक्शन हैज बीन लॉस्ट। नो, ये बम्बार्डमेंट ऑफ डाटा करोगे, सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा। वो सोचेगा राइस की 13%, वीट की 15%। ये इट विल क्रिएट, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए पॉजिटिव तो नहीं आ रहा, नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाएगा उसके ऊपर, टेंशन में आ जाएगा। आई ऑल्सो बिकम टेंस जब इसे मेरे को देखे, क्या है ये, क्या राइस कितना हो गया, वेज इतना हो गया, फिर मैं खुद ही अपने इसमें टेंशन में आ जाऊंगा। सो अवॉइड दिस बम्बार्डमेंट ऑफ डाटा। डाटा का आपको फेंक फेंक के नहीं मारना है। यू हैव टू अवॉइड क्लटरिंग विथ मल्टीपल नंबर्स। सिंपल, जस्ट 2% डाटा, यहाँ पे जस्ट 13% डिक्लाइन। ऐसा आपका होना चाहिए पर्सपेक्टिव ड्यूरिंग द राइट quoting the database question, database introduction. Now the last and one of the favorite one is code-based introduction for ethical, philosophical, society-related question, but only if the code naturally fits. Again, यहाँ पे लिखा है ethical, philosophical, society-related question, but only if the code naturally fits. अभी हमने थोड़ी देर ऊपर वाटर वाले क्वेश्चन में भी कोड फिट कर दिया था। Although we have looked it from the philosophical point, philosophical dimension आ रहा था वहाँ पे, ठीक है। लेकिन वहां पे भी देखो GS 1 या 3 का क्वेश्चन आता है वो वाटर वाला, बट अगेन वी हैव यूज दैट कोड बेस्ड क्वेश्चन इन द वाटर वाला पार्ट। वाटर मीन्स ज्योग्राफी वाला पार्ट। तो ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर आपके पास में बहुत ही एप्ट कोट है, यूज करो, नो नीड टू वरी, सोचना नहीं है। गलती क्या होती है, हम सोचते हैं कि ये फिट होगा कि नहीं होगा। आप इतना मत सोचो। अगर मोर देन 50% वो अलाइन कर रहा है आपके डिमांड से, तो लिख दो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो हवा में जाना चाहिए, बट इफ इट इज अलाइनिंग मोर देन 50-60%, यू शुड डेफिनेटली राइट दैट कोड बेस्ड क्वेश्चन। यू एग्जामिनर के पास भी इतना टाइम नहीं रहता है कि वो एग्जैक्ट देखे कि फिट हो रहा है नहीं हो रहा है। और दीज आर सम कोड बेस्ड क्वेश्चन, दीज आर सम। और फिलोसॉफिकल क्वेश्चन, कोड बेस्ड क्वेश्चन ऐसे रहते हैं दैट आर बियॉन्ड दैट नॉर्मल लेवल, नॉर्मल लेवल के बियॉन्ड रहते हैं। तो दे हैव डिफरेंट लेयर्स, दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स। और एग्जामिनर इतने अवेयर रहते हैं, दे आर वेल अवेयर, दे आर वेल रेड, एक्सपीरियंस प्लेयर है। तो उनको पता है कि मतलब दे ऑल्सो लव दिस टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन। नाउ लेट अस लुक, begin with a relevant quote and immediately connect with the topic. Again the same manner, कोट लिखना है और आपको फिर टॉपिक के साथ में कनेक्ट करना है। अब ये कनेक्शन से क्या होता है, आप चाहो तो कोट लिख के भी होता है। जैसे मैंने बताया था व्हाट दैट आदित्य प्रधान, उनकी अगर कॉपी देखोगे तो हाउ विल ही अप्रोच, ही विल राइट अ कोट, देन उसके बाद में सीधे बॉडी पे आ जाएगी, वो बॉडी स्टार्ट कर देगी। ये हो गया मैकेनिकल अप्रोच, दैट इज द अप्रोच ऑफ इंजीनियरिंग, दैट इज द अप्रोच ऑफ दैट इज वेरी गुड एट अ स्ट्रक्चरल मैनर। दूसरा पर्सपेक्टिव बताता हूँ, दूसरा पर्सपेक्टिव हो गया श्रुति शर्मा, शी विल राइट द कोट एंड दे विल देन शी विल कनेक्ट विद द टॉपिक। देन वहां पे फिर उसके बाद में शी विल स्टार्ट विद बॉडी। इसमें क्या हो रहा है, इसमें शी हैज प्रोवाइडेड दैट कनेक्टिंग लाइन। वो कनेक्टिंग लाइन क्या करती है, कनेक्टिंग लाइन कनेक्टिंग लाइन ब्रिंग अ फ्लो। और ये फ्लो है जो आपको हवा जैसा जादू प्रोवाइड करता है आपके आंसर्स को, ठीक है। दोनों भी रैंक नंबर 1 है, ये भी रैंक है, ये भी नंबर 1 है, ठीक है। बट आपको मैं बता रहा हूँ दोनों अप्रोच इज गुड, बट कोशिश हमारी क्या होनी चाहिए, वी हैव टू कनेक्ट विद द टॉपिक। अगर सामने वाला नहीं समझ पा रहा है या फिर आपका कोड थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट हुआ, तो आपको समझाना है वहां पे हाउ इट इज रिलेवेंट टू द क्या बोल सकते हैं, हाउ इट इज रिलेवेंट टू द subject that has been asked. Begin with a relevant quote and immediately connect with the topic. Let us see the example. Critically analyze the role of media in the Indian democracy. Critically analyze the role of media in the Indian democracy. Model introduction देख लेते हैं। Media, the fourth pillar of democracy, bridges the state and citizen, shaping opinion and ensure accountability through information and critique. हम्म। तो देखो यहाँ पे आपको लग रहा होगा फोर्थ पिलर आ गया, तो फोर्थ पिलर इट मीन्स
फोर्थ पिलर इज ऑल्सो अ फिलोसॉफिकल टिंट, और फिलोसॉफी के साथ में इट इज ऑल्सो अ कोट, दैट इज थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो वो वाला कोट आ गया है, लेकिन ये आई थिंक इट इज मोर ऑफ अ फिलोसॉफिकल टिल्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, रुको, अपन अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज नॉट फिटिंग एप्टली हियर। ब्रिजिंग द स्टेट एंड सिटीजन, शेपिंग ओपिनियन एंड एंश्योर अकाउंटेबिलिटी थ्रू। ठीक है, वेरी गुड, बट थोड़ा सा फिलोसॉफिकल टिल्ट आ रहा है। कोड बेस में अपन देखते हैं। कोड बेस इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है? लेट अस, फॉर एग्जांपल, लेट अस सी द सोसाइटी वाला क्वेश्चन। सोसाइटी में इंडियन डाइवर्सिटी, इंडियन सोसाइटी, इंडिया इंडिया इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी पे हर साल क्वेश्चन आता है। ठीक है, डाइवर्सिटी का क्वेश्चन है, तो डाइवर्सिटी का कोई भी क्वेश्चन रहे, यू कैन स्टार्ट विद अ कोट। ठीक है, अब कोट किसका है, क्या है? ये कोट नहीं है, इट इज अ से, मतलब नॉर्मली जो कहावत होती है, इट इज अ कहावत। तो कहावत ऐसी है कि, हाँ, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी, चार कोस पर वाणी। ऑल्दो इट इज अ हिंदी या संस्कृत, आप जो भी बोलो, वाणी हिंदी वाला है, लेकिन ये सब जो डायलॉग है दैट हैज बीन हर्ड बाय मोर और लेस एवरीवन। वो कोई छोटे प्लेयर नहीं है, वो एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने जीवन में कभी ना कभी सुना होगा दिस टाइप ऑफ। कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। समझ रहे हो आप? एंड दिस कहावत या फिर दिस वर्ड्स denote the diversity India is possessing, the diversity in culture and diversity in cuisine, all those things India is possessing is reflecting the same. समझ में आ रहा है? How we have connected a quote, और किस तरीके से यहाँ पे जादू ला दिया इन द इंट्रोडक्शन। अंजलि, आर यू देयर? Yes, sir. मतलब आर यू गेटिंग? ये हिंदी वाला कोट है, बट आर यू गेटिंग क्या हम बताना चाह रहे हैं इससे? Uh, sir, can you tell in English? I mean, if possible, can you translate? ओके, कोस कोस Otherwise, मतलब, ओके, एट एवरी किलोमीटर देयर हैज बीन चेंजिंग द वाटर, and at every okay. 4 kilometer, at particular 4 unit kilometer, uh, uh, at a particular distance, we have a different language. थोड़ी थोड़ी दूरी पे, Mm-hmm. at every other kilometer we are having a different water, at every other kilometer we are having a different language. This is the what we can say, Got it is it. known as kahawat in Hindi. Okay. It means how we have used that quote to reflect the diversity of India. Mm-hmm. Understood. Okay, okay. Mm. ठीक है, तो इन द सेम मैनर वी कैन ऑल्सो यूज वेरियस टाइप ऑफ कोट्स। फॉर एग्जाम्पल, लाइक गांधी जी का जो कोट है, जो बार बार यूज होता है, व्हाट इज दैट? जब एनवायरमेंट का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज दैट? देयर हैज बीन इनफ फॉर एवरीवन्स नीड, बट नॉट इनफ फॉर एनीवन्स ग्रीड। Great. राइट, एनीवन नीड, और हो गया यहाँ पे ग्रीड। सो इट रिफ्लेक्ट दैट द insatiable greed of human desires, insatiable greeds and desires of human nature। एथिक्स के पेपर में हो सकता है ये, या फिर एनवायरमेंट वाले इसमें भी यूज कर सकते हैं, कि किस तरीके से वी हैव टू फोकस ऑन आवर नीड, नॉट ऑन आवर ग्रीड, बिकॉज इफ वी फोकस ऑन आवर ग्रीड द एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी विल बी हैम्पर्ड, हिंडर्ड, इस तरीके के कहीं ना कहीं वी कैन कनेक्ट। समझ में आ रहा है? कोड बेस्ड क्वेश्चन। आर यू गेटिंग अंजलि, Yes, अजय? I am getting. ओके, राइट, लेट अस मूव अहेड। ऑलवेज एक्सप्लेन द कोट इन योर ओन वर्ड बिफोर मूविंग अहेड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास में इतना कभी कभी समय नहीं रहता है, बट ये जो लिंकिंग वाला एस्पेक्ट है ना, इट कैन बी,
मस्ट बी डन सो दैट हमारा जो कनेक्शन है वो यहाँ पे बन जाए। डोंट यूज क्लिशे एंड ओवर यूज कोट लाइक गांधी जी का बी द चेंज। ये वाला आपको यूज नहीं करना है, बी द चेंज यू वांट टू सी। थोड़ा सा यूनिक होने चाहिए, नहीं तो फिर वो मजा नहीं आता है। राइट दैट ये वाला ग्रीड वाला इट कैन बी यूज, इट कैन बी यूज। और ये वाला तो बहुत ही बेहतरीन है, दैट कोर्स कोर्स पर बदले पानी, इट इज वेरी मच गुड। ओके, नाउ लेट अस लुक एट what are the mistake we do that make our introduction weak. What are the common mistakes? Let us see. Copy pasting lines from the question. ये तो कभी मत करो. Don't copy paste line from the question. Never do the copy pasting from the question. If you are, देखो कभी कभी क्या होता है, we are running out of time. We don't have time. In that case, what we have to do is we have to change the word. ठीक है? If you are not having time, what we have to write is you have to write the synonym of the word that has been asked in the question. तो उससे भी क्या होता है, सिनोनिम आप यूज करने से भी क्या होता है, एटलीस्ट ऐसा नहीं लगता है कि यार यू हैव जस्ट कॉपी पेस्टेड, यू हैव यूज सम ब्रेन एज वेल। तो ऐसा भी कभी कभी कर सकते हो, बट कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। फिर इसके साथ में यहाँ पे स्टार्टिंग एब्रप्टली, ग्लोबलाइजेशन हैज मैनी इफेक्ट। अरे पहले बताओ तो सही, ग्लोबलाइजेशन यू हैव टू क्रिएट सम बेस। तो वो बेस कहाँ से होगा, वो यहाँ से होगा। फॉर एग्जाम्पल ग्लोबलाइजेशन का भी क्वेश्चन, एवरी ईयर देयर हैज बीन क्वेश्चन ऑन ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का भी जो है, इट कैन बी स्टार्टेड विद अ कोट, या फिर ये तो डेफिनेशन से भी स्टार्ट हो सकता है, डेफिनेशन वाला। ठीक है, डेफिनेशन वाला अप्रोच, ऑल्दो वी हैवंट सीन डेफिनेशन वाला, लेकिन डेफिनेशन से भी स्टार्ट हो जाता है। या फिर ग्लोबलाइजेशन को बोल सकते हैं, द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज, द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज, इस तरीके का अप्रोच करके। या फिर रुको एक और बताता हूँ, ग्लोबलाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल, हाँ चलो, एंथनी गिडन्स का ले लेते हैं। एंथनी गिडन्स इज अ अथॉरिटी ऑन द ग्लोबलाइजेशन। सोशियोलॉजी वालों को पता होगा, एंथ्रो वालों को पता होगा। ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन को क्या बोला एंथनी गिडन ने, ही हैज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन एज अ जगरनॉट। जगरनॉट का मतलब होता है जगन्नाथ का जो रथ रहता है ना, विसाई, उसका उससे वर्ड बना है इंग्लिश में, दैट इज जगरनॉट। ग्लोबलाइजेशन इज एक्टिंग लाइक अ जगरनॉट, impacting एवरीथिंग कमिंग इन इट्स पाथ। और ये इस बार आया था 2025 में, तो आई हैव रिटन दिस एंथनी गिडन वाला, ये उनका कोट है। अब वो कोट कहाँ पे मिलेगा आपको, रन अवे वर्ल्ड, एक उनकी बुक है रन अवे वर्ल्ड। ठीक है, अब इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है, बट ये बता दिया मैंने, ग्लोबलाइजेशन इज एक्टिंग लाइक अ जगरनॉट इम्पैक्टिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ एवरीथिंग कमिंग इन इट्स पाथ, एंड सोसाइटी इज ऑल्सो वन ऑफ द एस्पेक्ट। आता है ना कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट ऑन फैमिली, तो यहाँ पे लिख दो, इट इज चेंजिंग एवरीथिंग इन इट्स पाथ, कमिंग इन इट्स पाथ। तो यहाँ पे लिख दो, एंड फैमिली इज नॉट अनइम्पैक्टेड बाय इट। मतलब फैमिली इससे अछूती नहीं रही है, बची नहीं है, फैमिली इज ऑल्सो इम्पैक्टेड। इस तरीके से कहीं ना कहीं आपने क्या करा, एक कोट लिखा और उसके साथ में कनेक्शन कर दिया। ऑल्दो इट इज नॉट अ कोट बट इट इज अ वर्ड ऑफ समवन, तो आप उनका रेफरेंस लेके यू कैन कॉल इट अ कोट। तो ये कहाँ पे कोट वाला कौन सा पार्ट है, ये वाले कोट बेस्ड इंट्रोडक्शन में हमने एक और देख लिया, एंथनी गिडन वाला पार्ट। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का बात आई थी, देयरफॉर आई हैव रिकॉल्ड ऑल दोस थिंग। राइटिंग लॉन्ग बैकग्राउंड पैराग्राफ, ओ माय गॉड, ये तो मत करो, कभी मत करो, रॉन्ग पैराग्राफ तो मत लिखो, सामने वाला परेशान हो जाता है। यूजिंग वेग ओपनिंग लाइक सिंस एंशिएंट टाइम, ये भी मत करो। हमने क्या लिखा था, वी हैव यूज दैट रोटी बेटी का रिश्ता, बट हमने ये थोड़ी लिखा सिंस एंशिएंट टाइम, ये होते आ रहा है, वी हैवंट राइट ऑल दोस थिंग। इट क्रिएट a negative impact in the minds of that examiner. Not connecting the introduction with the actual demand. Actual demand क्या है आपकी, उसके साथ में आप इंट्रो को कनेक्ट ही नहीं कर रहे हो, हवा में आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया। आपने कोई फैक्ट एंड फिगर लिखा, लेकिन अगर उसका कनेक्शन नहीं बैठा पाए, तो वो दैट वुड क्रिएट समथिंग नेगेटिव
impact. What you have to do is you have to be crisp, you have to be thematic and purpose driven. क्रिस्प, थीमेटिक एंड पर्पस ड्रिवन आपका जो है इंट्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है, नाउ हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास? वी हैव अजय एंड अंजलि। ठीक है, थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं। थोड़ा सा है ना, हमें हवा में बातें नहीं करनी है। वी हैव टू डू समथिंग सो दैट हम जो है अपने आप को इम्प्रूव कर पाए, सो दैट वी कैन इम्प्रूव अवर सेल्फ, राइट? तो अब जो है आई एम गिविंग यू अ टास्क। अभी एट द सेम मोमेंट आपको क्या करना है? आपको जैसे अजय अजय इज इन द लाइब्रेरी, तो वो तो बोल नहीं सकते हैं, बट ही हैज टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। आपको राइट करना है कि अगर आपको सेम क्वेश्चन दिया जाए तो व्हाट विल बी यू आर राइटिंग इन द कॉन्टेक्चुअल, डाटाबेस और कोड बेस्ड। आपको इसी पे 3 तरीके के इंट्रोडक्शन लिखने हैं, 3 टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन फॉर द सेम क्वेश्चन। एक हो गया कॉन्टेक्स्ट बेस्ड, एक हो गया डाटा बेस्ड, एक हो गया कोड बेस्ड। सो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अजय आप सोचो और लिखो। एट द सेम टाइम अंजलि आप सोचिए और बताइए मुझे, तीनों पे से एक एक आपको बताना है। अजय इफ यू कैन स्पीक, बाहर आ सकते हो एंड यू कैन कमेंट कि कौन कौन से आप 3 स्टाइल फॉलो करोगे, तो वो भी चलेगा। कौन कौन से 3 स्टाइल में आपका क्या क्या इंट्रोडक्शन होगा। स्टार्टिंग फ्रॉम अंजलि, बताओ कॉन्टेक्स्ट वाला स्टार्ट करो। कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन? डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वेरी गुड, इजी क्वेश्चन है। एथिक्स का रोल क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में? कॉन्टेक्स्ट। अंजलि सोचो, यू हैव टू थिंक। Hello. यस Sir, अंजलि कंटिन्यू। ethics role is to maintain the transparency in administration and accountability. But ओके, ओके, नॉट बैड। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड एक आता है integrity. रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ चलो, इंटीग्रिटी। ओके, इंटीग्रिटी इन द सिस्टम। ओके, नॉट नॉट बैड, वेरी गुड। ये हो गया कॉन्टेक्चुअल। नाउ राइट समथिंग डाटा, डाटाबेस। सेम um, क्वेश्चन, इस पे डाटाबेस आपको कुछ लिखना है। ठीक है, डाटा भले एक्यूरेट ना हो, बट वी आर प्रिपेयरिंग कि हम क्या क्या लिख सकते हैं। ऊपर नीचे चल जाएगा, okay. जस्ट ट्राई टू। हाँ बोलिए। The data I'm not getting. ओके चलो कोई बात नहीं, डाटा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कोड, कोड तो आना चाहिए एथिक्स में। इट इज वेरी इजी। Oh, no, sir. Mm. Sorry, sir. I'm not getting any code.
Sir, you are not audible. ओके, राइट राइट राइट। यस। तो अभी अजय, अजय हैज रोड about rule of law, accountability, public trust, and impartiality, and corruption-based rank may be right and second ARC based. ओके, तो देखो कॉन्टेक्स्ट वाले में क्या हो सकता है, रूल ऑफ लॉ, अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक ट्रस्ट, इम्पार्शियलिटी, दिस वैल्यूज कैन बी अलाइन विथ हाउ द एथिक्स कैन ब्रिंग दिस वैल्यूज इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट कैन ट्रांसफॉर्म आवर सोसाइटी। वेरी गुड। तो ये कॉन्टेक्स्ट में अजय ने लिख दिया है, इट इज वेरी गुड। सेकंड वाले में बोला है करप्शन बेस्ड रैंक एंड सेकंड ईआरसी। अब लेट अस सी, पहले वाले में यहाँ पे ये सब चीजें आ गई। सेकंड में वी कैन स्टार्ट विथ डाटा, जो अभी अजय ने बताया, दैट इज करप्शन रिलेटेड डाटा, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स दैट हैज बीन पब्लिश्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। उसका हम यूज कर सकते हैं कि 100 से भी हमारे नीचे रैंक है इन करप्शन परसेप्शन, एंड इट हाईलाइट्स दैट वी रिक्वायर्ड एथिक्स इन आवर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सो टू स्टॉप all this corruption type of thing, so to maintain transparency in our system and integrity in our system, right? बहुत अच्छा, देखो अजय ने कितना अच्छा पर्सपेक्टिव बताया है। आई गेटिंग? बताओ अंजलि, आपको समझ में आया? सेकंड हाँ, ईआरसी का yes, भी sir. यहाँ पे यूज हो सकता है। यस, सेकंड ईआरसी कैन आल्सो बी यूज, कि हाउ द सेकंड ईआरसी हैज हाईलाइटेड दैट एथिक्स, या फिर सेकंड ईआरसी की आप बता सकते हो कि पर्टिकुलर रिपोर्ट रहती है ऑन एथिक्स, इट हैज हाईलाइटेड दैट एथिक्स कैन ब्रिंग, ethics can bring emotional intelligence, empathy, and compassion to the system. Are you getting? To the governance, मतलब to the public administration, to the public administration। ये भी कितना बढ़िया हो गया, आपने सेकंड ईआरसी का रेफरेंस देके आपने पूरी बात क्या दी। आर यू गेटिंग? अगेन अच्छा पॉइंट आ रहा है, ये तो सीपीआई भी बहुत अच्छा है, सेकंड ईआरसी भी वेरी गुड। नाउ कोड बेस्ड। अब कोड बेस्ड जो है, आई एम रिमेम्बरिंग अ कोट दैट इज in every aspect of life there is nothing more important than ethics। ठीक है, यहाँ पे आपको एक राइटर है, मतलब सॉरी, जिन्होंने कोड दिया उनका नाम आ जाएगा, राइट नाउ आई एम नॉट रिमेम्बरिंग। अब वो क्या है, जब हमने GS4 की प्रिपरेशन करी, मतलब मैंने की थी, उस समय याद था वो सब, लेकिन एटलीस्ट कोट याद है। आपको कोई जरूरी नहीं है कि आपको वहां पे रेफरेंस देना ही है। इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ देयर इज नथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन एथिक्स, सो इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एथिक्स प्लेज अ क्रिटिकल रोल। इस तरीके से आपने इंट्रोडक्शन दे दिया एंड यू कैन फिर मूव अहेड। समझ रहे हो, बॉडी की तरफ जा सकते हो, लेकिन आपने यहाँ पे बेहतरीन यहाँ पे स्टार्ट कर दी है विद अ कोट। कितने सारे पर्सपेक्टिव हो गए, देखो कितने सारे डायमेंशन से हमने कहीं ना कहीं स्टार्टिंग करी है। अब ठीक है, अब देखो कॉन्टेक्स्ट वाले में क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट वाले में यू हैव टू गिव सम कॉन्टेक्स्ट। अब आपने जो बोला है, ये जो अजय ने बताया है एंड आपने जो बताया है अंजलि, दीज आर ऑल्सो वेरी गुड अप्रोच। लेकिन कॉन्टेक्स्ट में क्या हो रहा है, यू हैव टू कनेक्ट विद करंट अफेयर, या फिर जो इन न्यूज चीजें चल रही है। तो न्यूज में चीजें चल रही है, तो उसके अंदर एथिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन में अंदर हम क्या कर सकते हैं, एथिक्स के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या कर सकते हैं, वी कैन कनेक्ट विथ मिशन कर्मयोगी। ठीक है, मिशन कर्मयोगी के साथ में, और फिर मोदी जी की स्पीच के साथ में वी कैन कनेक्ट, कि मोदी जी की स्पीच ऑन 31 अक्टूबर ड्यूरिंग द सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पीच, ये हाईलाइटेड द रोल ऑफ एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस तरीके से भी आप हाईलाइट कर सकते हैं, एंड द रोल ऑफ मिशन कर्मयोगी, दैट द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन duty is, they are not just the administrator, they are the real karma yogis which can bring a transformation in the society, and that it can be only possible by bringing the ethics, integrating the ethics with the administration। समझ में आ रहा है कितना वेल अच्छे तरीके से हमने मिशन कर्मयोगी मोदी जी की स्पीच का यूज करके दोनों चीज को अलाइन कर दिया। इज इट गुड?
अंजलि इज अ गुड वे. ओके, ठीक है, ये एक पर्सपेक्टिव हो गया. एक और करंट अफेयर में से एक और आ सकता है कि जैसे जो सिविल सर्विसेज डे होता है, सिविल सर्विसेज डे पे ऑनेस्ट ऑफिसर्स को बहुत अच्छे अच्छे कंट्रीब्यूशन दिए जाते हैं, रिकॉग्नाइज किया जाता है. तो अशोक खेमका जी का आप यूज कर सकते हो, उसके अलावा टीएन शशांक का. तो उनका रेफरेंस लेके हाउ द टीएन शशांक birth date had been celebrated across the India, and it has highlighted the role of ethics, how ethics can transform the public administration and bring it towards society, and how it can enhance the service delivery. बिल्कुल, बहुत अच्छा है. देखो टीएन शशांक का, चलो ठीक है, मान लो ये भी आपको नहीं समझ में आ रहा है. अ, या फिर आप लिख सकते हो कि रिसेंट केसेस ऑफ करप्शन बाय, ठीक है, आप किसी का नाम मत लो. रिसेंट केसेस ऑफ करप्शन दैट हैज बीन हाइलाइटेड इन द न्यूज shows that ethics is critical, या फिर ethics is must. ये तो इजी बता रहा हूँ मैंने, तो अगर आपको और अच्छे अच्छे वर्ड यूज करना है तो सीने क्वेनाइन, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं. बट स्टिल बेसिक हमारी क्लास है, we should not go in the that depth. Recent cases of corruption that has been exposed by the West Bengal, in the West Bengal government, या फिर जो पेपर लीक वाले बात हो गई, या फिर जो भी कुछ हो गया, एसएससी लीक हो गया, या फिर पुलिस के अंदर कुछ वो हो गया. इट हैज हाईलाइटेड दैट एथिक्स इज क्रिटिकल फॉर द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. इस तरीके से आप बता सकते हो. तो आपने इसको कनेक्ट कर दिया. क्या रिपोर्ट से हो सकता है, मनरेगा में गैप से कनेक्ट कर सकते हैं. तो इस तरीके से एनीथिंग कैन बी यूज टू स्टार्ट अ कॉन्टेक्चुअल, मतलब many thing can be written, can be write to start a contextual type of introduction. अब देखो फिलो ये सब हमने देख लिया. अब यहाँ पे एक फिलोसॉफिकल चौथा जो डायमेंशन है, उसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है. दैट इज अ फिलोसॉफिकल स्टाइल. व्हाट इज दैट? एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट अबाउट रूल्स, इट इज अबाउट कंसाइंस. A civil servant's integrity determine the credibility of government governance itself. Thus, ethics form the invisible backbone of our just administration. ठीक है, इतना बड़ा तो नहीं लिखना है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इसमें से एक पॉइंट को लेके भी हाईलाइट किया जा सकता है कि एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट अबाउट रूल्स, इट इज अबाउट कंसाइंस, एंड इट इज नॉट रूल बेस्ड, इट इज रोल बेस्ड, एंड इट determines the credibility of governance itself. Therefore, it is a backbone, invisible backbone of just administration. तो इस तरीके से philosophical statement introduction can also be written. ठीक है, अब देखो आपको घर से भी करके लाना है. डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन कल्चर. अभी आपको ग्लोबलाइजेशन का ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, एंथनी गिडन वाला. वो कॉपी पेस्ट मत करना, अपना दिमाग लगाना, और चारों के अंदर अप्रोच जो यूज हुई है उसको आपको देख के आना है. ठीक है, अगर आप चारों को यूज करना सीख गए तो इट वुड बी इजियर टास्क. ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस करना है. अजय एंड अंजलि, करके आना. ये इजी टास्क है, 5-10 मिनट लगेंगे, बट इट विल ब्रेक योर रेजिस्टेंस टू हाउ टू स्टार्ट आंसर. डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर. ऑलरेडी इसका आंसर मैं आपको एक दे ही चुका हूँ. बस आपको वापस से ग्लोबलाइजेशन का फैक्ट बेस, डाटा बेस, कोड बेस, इस तरीके से आपको यूज करना है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एग्जाम आपसे कल देखूंगा मैम, आपसे पूछा जाएगा ये सब चीजें. रिकैप देख लेते हैं क्या क्या हुआ यहाँ पे. कॉन्सेप्ट आपको देखो, कॉन्सेप्ट होना चाहिए. डिफाइन द थीम, कीवर्ड, मतलब या तो फिर कॉन्सेप्ट आपको इंट्रोडक्शन में आपको पता होना चाहिए कि किसके बारे में. कीवर्ड जो है, डिमांड जो है, वो आपको पता होना चाहिए. फिर डिमांड के हिसाब से आपको क्या देना है, सप्लाई देना. कॉन्टेक्स्ट, क्यू, रेलेवेंस, डाटा, कोट, ये सब आप कॉन्टेक्स्ट के अंदर सेट कर रहे हो. कनेक्शन, लिंक टू द बॉडी और पार्ट. लेंथ कितनी होनी चाहिए, 3.3 से 4 लाइन मैक्स. एंड टोन क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, एकेडमिक होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए. पार्शियल कभी भी नहीं होना है, इंट्रोडक्शन में भी पार्शियल नहीं होना है.
एकेडमिक मतलब थोड़ा सा वेल स्टैंडर्ड होना चाहिए आपके वर्डिंग्स के अंदर, ऐसा नहीं है कि लोकल लैंग्वेज आपने यूज कर ली। जैसे होता है ना डबल इंजन की सरकार और इस तरीके के जो आते हैं, ऐसा नहीं होना है। एकेडमिक इंजन, एकेडमिक आपकी होनी चाहिए लैंग्वेज, कॉन्फिडेंट। ठीक है, आपका जो आंसर है शुड रिफ्लेक्ट, इंट्रोडक्शन शुड रिफ्लेक्ट कॉन्फिडेंस एज वेल। ठीक है, रिमेंबर यू डोंट नीड अ फैंसी स्टार्ट, यू नीड अ फोकस स्टार्ट। फैंसी नहीं करना है, बहुत ज्यादा के पीछे नहीं भागना है, आपको वापस से बोल रहा हूँ। सिंगल स्टेटमेंट में बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन लिखा जा सकता है। नाउ दैट यू हैव लर्नड हाउ टू स्टार्ट स्ट्रांग, कल हम करेंगे हाउ टू बिल्ड अ बॉडी, किस तरीके से हम अपनी बॉडी बनाएं ताकि सामने वाला देख के इम्प्रेस हो जाए। वेयर द रियल मार्क्स लाइज, क्योंकि रियल मार्क्स तो आपके बॉडी के अंदर ही है। द परफेक्ट बॉडी स्ट्रक्चर, हाउ टू ऑर्गेनाइज योर थॉट लाइक अ टॉपर, ये दिस विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट क्लास। डोंट मिस इट बिकॉज स्ट्रक्चर इज व्हाट कन्वर्ट क्लैरिटी इनटू मार्क्स। यही चीज से आपके मेनली मार्क्स आएंगे। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नाउ विल लुक एट द कॉपी ऑफ श्रुति शर्मा, और फिर देखते हैं किस तरीके से उन्होंने एक दो आंसर देखेंगे दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट कि मुझे दैट इज बियॉन्ड समथिंग आंसर। तो ये देखो, ये जो 14th वाला क्वेश्चन है, इट इज अ GS3 कॉपी। GS3 कॉपी 14 क्वेश्चन आ गया, मतलब ये जो आ रहा है एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन। इट इज अ एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चन। लेट अस सी द क्वेश्चन। Technological intervention envisaged under the agri-stack will help in increasing the income of farmers and improving the efficiency of agriculture sector by creating a seamless digital system examine। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन envisaged under the agri-stack will help in increasing the income of farmer and improving the efficiency of agriculture sector by creating a seamless digital ecosystem examine। ठीक है, अब एग्जामाइन करना है तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव वापस से अगेन दोनों आ जाएगी यहाँ पे एग्जामिनर, उसका परीक्षण करना है क्या सही बात बोली है। चलो वो सब बात की बात है, इंट्रोडक्शन हमें देखेंगे। इंट्रोडक्शन, व्हाट इज दैट? द इंडियन फार्मर्स इमेज हैज नॉट चेंज मच फ्रॉम व्हाट प्रेमचंद chalked out in his पूस की रात story in the absence of technological revolution। Agri stack is one step to bring change in this direction। Are you getting something? अंजलि समझ में आया, कुछ नहीं आया? नो? आर यू देयर अंजलि? डू यू गेट इट? The Indian farmer's image has not been changed much from the Premchand. What Premchand has been chalked out in the UPS Poos Ki Raat story in the absence of technological revolution। यहाँ पे क्या हुआ है, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन की बात बोली है। तो अगर टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन नहीं होगा तो इंडिया की जो फार्मर की इमेज है वो प्रेमचंद ने जो चॉकआउट की है पूस की रात वैसे की वैसे ही रहेगी, और अभी भी बहुत सारी चेंज नहीं हुई है बिकॉज टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन हैज बीन मिसिंग। एंड एग्री स्टेक क्या है, ये जो गड़बड़ हुई है, टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन जो मिसिंग है, एब्सेंस है, उसको उसके अगेंस्ट में उसको दूर करने के लिए इट इज वन स्टेप दैट इज प्रोवाइडिंग अ सॉल्यूशन टू इट। तो कहाँ से आ गया प्रेमचंद? अब कोई बोलेगा GS3 के पेपर में एग्रीकल्चर के अंदर आपने प्रेमचंद यूज कर लिया, राइट? ये फिलोसॉफिकल डायमेंशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, फिलोसॉफिकल है। ऑल्दो प्रेमचंद का नाम आ रहा है बट ये पूस की रात का जो रेफरेंस है दैट इज फिलोसॉफिकल टिल्ट, कि कितना उस समय इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन ऑफ फार्मर्स, और उससे उन्होंने कनेक्ट किया है। तो ये वाला जो एग्जांपल सामने वाला पढ़ेगा तो फिर वो समझ में आ जाएगा कि डेप्थ ऑफ नॉलेज, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ नॉलेज एंड डेप्थ ऑफ थिंकिंग लेवल यू हैव। ठीक है, इसके बाद में उसे कंटेंट पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना ही विल बी सो मच इम्प्रेस। तो इस तरीके के दिस impression can be created by such क्या बोल सकते हैं, by such introductions। लेट अस सी दो तीन अगर देख लेते हैं कहीं पे। देखो, डाटा बेस्ड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर आर द की टू ब्रिजिंग द गैप बिटवीन फूड सफिशिएंसी एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इन द कंट्री एग्जामाइन। मैंने क्या बोला था?
व्हाट आई हैव सेड दैट एग्रीकल्चर, ये अगेन एग्रीकल्चर वाला फूड प्रोसेसिंग आ गया। एग्रीकल्चर में यू ऑलवेज हैव दैट डाटा टू स्टार्ट विथ। डाटा आपको भर भर के मिल जाएगा ऑलरेडी, अगर आप अच्छे से पहले से वेल प्रिपेयर करके गए हो तो। यहाँ पे क्या है, फूड प्रोसेसिंग इन इंडिया इज restricted to only 10% of the food produce with much higher rate in Canada and USA, around 40% of the capture 40% of the world market। डाटा में देखो कुछ भी नहीं उन्होंने लिखा है, बस 10%, ओनली 10%, वो भी हवा में बातें की है। स्टिल she has started with the database introduction, restricted to only 10% of the food produce, very good। एंड उसको कंपेयर कर दिया कनाडा एंड यूएस के साथ में, 40% ऑफ द वर्ल्ड मार्केट को जो कैप्चर करके बैठे। इट कैन एक्ट एज अ, अब देखो यहाँ पे चाहे तो वो शी वुड हैव लेफ्ट हियर ओनली एंड यहाँ से बॉडी स्टार्ट कर सकती थी, बट थोड़ा सा एक जो कनेक्टिंग लिंक होती है वो देखो, इट कैन एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन फूड सफिशिएंसी एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एज, और इस तरीके से ब्रिज किया जा सकता है इस तरीके से। एंड शी हैज स्टार्टेड विद दिस ऑल दोस थिंग, राइट। ये सब आपको देखने को मिल रहा है किस तरीके से इंट्रोडक्शन, उनने डाटाबेस इंट्रोडक्शन आपको देखने को मिल रहा है। ओके, नाउ अगेन AI often seen as the panacea for all the current problem and ills, but like all advances in technology, it tend to be a double-edged sword. Critically analyze this statement in the recent advancement of AI. अब AI is set to ring in the fourth industrial revolution, revolutionizing all aspects of space, health, education and mobility and computing। अब देखो इन्होंने क्या करा है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एक कीवर्ड है, एंड इट इज आल्सो कीवर्ड, इसके साथ में इट इज आल्सो करंट अफेयर वाला कॉन्टेक्स्ट दे दिया इन्होंने, कॉन्टेक्स्ट बेस, राइट। एआई आ चुका है, बट एआई को इन्होंने किसके साथ में कनेक्ट किया है, एआई को इन्होंने फोर्थ आईआर के साथ में कनेक्ट कर दिया है। दैट एआई इज सेट टू रिंग इन द फोर्थ रिवॉल्यूशनरी आईआर, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशनाइजिंग ऑल द एस्पेक्ट। और फिर क्या है इसको, ये वाले एस्पेक्ट के साथ में, मतलब जो करंट प्रॉब्लम आ रही है, पेनेशिया, हर चीज का रामबाण इलाज है करंट प्रॉब्लम्स इन, तो वो वाला जो एस्पेक्ट है, स्पेस, हेल्थ, एजुकेशन, मोबिलिटी, कंप्यूटिंग, उसके साथ में दिया हो, ये शी हैज कनेक्टेड, राइट। इन दिस मैनर कॉन्टेक्चुअल इंट्रोडक्शन हैज बीन रिटन बाय हर, वेरी गुड अप्रोच अगेन। ठीक है, चलो इनकी कॉपी हो गई। नाउ लेट अस लुक एट सम अदर कॉपी। लेट अस लुक एट द दीपक गोदरा's copy, he is also one of the top scorer। ये देखो, explain the significance of IPR in transforming India into a knowledge-based and innovation-driven economy. Also mention various government initiative in this regard। अब इंडिया जो है, इंडिया रैंक 40th इन रिसेंट, कौन सी है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वीपो, दैट हैज बीन पब्लिश्ड बाय वीपो, shows trend in strengthening the IPR regime। कितने लाइन में, 3 लाइन में, यस फिनिश इट इन 3 लाइन। कितना क्रिस्प तरीके से कि इंडिया की रैंक जो है 40 हो चुकी है इन द करंट ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इट शोज द ट्रेंड इन स्ट्रेंथनिंग द आईपीआर। देखो इन्होंने बहुत ही शॉर्ट में कर दिया, बट इट इज वेरी वेरी एप्टली ही हैज स्टार्टेड। यहाँ पे क्या लिया है, यहाँ पे लिया डाटा, और डाटा को यहाँ पे क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया है जो क्वेश्चन की डिमांड है। डाटा क्या है, बहुत बम्बार्डमेंट कर रहा है डाटा का, नहीं, सिंपल डाटा, प्लेन डाटा, अ सिंगल फिगर डाटा, सॉरी अ सिंगल डाटा इज देयर, नॉट 2 or 3 डाटा। इंडिया रैंक 40th इन द ग्लोबल इनोवेशन रिपोर्ट, बहुत अच्छा है। देखो ये भी अच्छा, इट इज आल्सो वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा एमएसएमई जो है, एमएसएमई इज आल्सो इन न्यूज अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, हर बार क्वेश्चन आता ही है। देयरफॉर एमएसएमई पे 2-3 इन्होंने चीजें याद कर लिए, एंड ही इज रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन। दैट इज व्हाट इज दैट, MSMEs are the drivers of Indian economy while employing 6.7 crore directly, 29% GDP and 40% of net export basket। अब आप बोलोगे यहाँ पे बम्बार्डमेंट कर दी उन्होंने, लेकिन ठीक है, इसके अलावा उन्होंने यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है। मतलब
ये जो 3 अप्रोच, सॉरी 3, यहाँ पे क्या क्वेश्चन इज अबाउट इंडियन इकोनॉमी। अगर आप इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हो तो सिर्फ इफ यू हैव टॉक्ड अबाउट जीडीपी, तो उसका बहुत अच्छा, बिल्कुल इट हैज बीन कनेक्टेड विद द इंडियन इकोनॉमी। लेकिन जीडीपी के साथ में एम्प्लॉयमेंट डाटा भी दे दिया है और एक्सपोर्ट डाटा भी दे दिया है, तो दिस इज समथिंग वेरी गुड अप्रोच। आपने एडिशनल दिया है, अब आप बोलोगे बम्बार्डमेंट ऑफ डाटा, इट इज नॉट बम्बार्डमेंट ऑफ डाटा। ये डेप्थ प्रोवाइड कर रहा है आपके आंसर को कि एमएसएमई का रोल कितना बड़ा है, कि नॉट ओनली इट इज प्रोवाइडिंग सिक्स, इट इज नॉट ओनली, इट इज प्रोवाइडिंग 29% टू द जीडीपी, contributing to 6.7 करोड़ जॉब डायरेक्टली, 40% ऑफ द नेट एक्सपोर्ट। तो ये तीन चीजें, और आप देखोगे हर जगह पे ये तीन चीजें ऑलवेज गोज हैंड इन हैंड। जीडीपी हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, एंड अनएम्प्लॉयमेंट वाला हो गया। ठीक है, कोई भी एग्री का कोई भी पार्ट हो जाए, फिशरीज हो जाए या क्या बोल सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री हो जाए, तो वहां पे भी आप यही आता है कि वहां पे हाउ मेनी पीपल आर एम्प्लॉय, हाउ मच कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी एंड हाउ मच एक्सपोर्ट पोटेंशियल दे हैव। इस तरीके से इट इज ऑल्सो वेरी गुड अप्रोच, दैट इज डाटाबेस अप्रोच। ठीक है, डाटाबेस हो गया ये, और इसके साथ में कोड बेस्ड अप्रोच कहीं ना कहीं मिली नहीं है अभी, लेकिन कोड बेस्ड अप्रोच इज जनरली सीन इन GS3, GS4 वाले इसमें। अगर आएगा तो बता दूंगा, ऑलरेडी आई हैव शेयर्ड मैनी कोड बेस विथ यू। देखो अगेन ये हो गया डाटाबेस। ठीक है, आप पॉज करके पढ़ लेना या तो स्क्रीनशॉट लेके देख लेना। ओके राइट। राइट, तो दिस वाज द अप्रोच दैट हैज बीन अडॉप्टेड बाय दिस टॉपर। अंजलि, आई गेटिंग, समझ में आया क्या पढ़ा है क्या नहीं, किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, इंट्रोडक्शन को कैसे लिख सकते हैं? ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका टास्क है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन, ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर। टुमारो वी विल कंटिन्यू विद आवर डे 3। अंजलि, इज इट ओके? डू यू हैव एनी डाउट? अंजलि, अजय, अंजलि, अजय थम्स अप दे दीजिए। ओके, ओके, शायद लाइब्रेरी में बोथ आर इन लाइब्रेरी। लेट अस wrap up our session. It was a day 2. We have learned how to write introduction, how to uh, write introduction from various perspective. 4 dimension we have seen, 4 approaches to write a introduction. And introduction is something that can create a first impression. Not only first impression, but also a lasting impression that can help you in fetching additional 0.52 plus 1 mark. For example, that we have seen about Poos Ki Raat wala example. Poos Ki Raat, definitely she has been awarded with at least 0.5 to 1 mark for that creativity. So we have looked at the introduction. Tomorrow we will cover a body, solid body. How to create a solid body, we will look in the next class on the day 3. Because solid body बन जाएगी तो फिर you will have a lasting impression. Lasting क्या, फिर आपके मार्क्स भी बहुत ज्यादा आ जाएंगे सॉलिड बॉडी अगर होगी तो। एंड सॉलिड बॉडी इज बेस्ड ऑन कंटेंट, एंड उसके साथ में कंटेंट के साथ में फ्लो, और कंटेंट, फ्लो एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, दिस 3 थिंग और भी बहुत सारे एस्पेक्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।